ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। प्रीवियसली जो हमने बताया था, मैंने आपको दो तीन मैं आपके टॉपिक थोड़ा रिवाइज करवा दूँ। ये टॉपिक्स मैंने आपको पहले भी की दो बता चुका कि दीज आर योर बेसिक्स। सो ये जो बेसिक्स हैं, दीज बेसिक्स हैज़ टू बी क्लियर्ड। ये बेसिक जो है वो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आई एम जस्ट रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन. Physical quantities are those quantities that can be measured. So all those quantities that can be measured are called your physical quantities. इसकी भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, velocity. All these quantities can be measured. So all these quantities are called your physical quantity. Then I've told you that physical quantities are divided into two parts, into two types. Those two types are called your base quantities and derived quantities. Base quantities I have told you that there are total 7 in numbers. Base quantities जो है आपकी वो 7 होती हैं. टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़. ये 7 जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनके नाम आपको आने चाहिए. यू शुड रिमेंबर देयर नेम, यू शुड रिमेंबर देयर सिंबल्स, यू शुड रिमेंबर देयर यूनिट्स. तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है 7 बेस क्वांटिटीज़ की. व्हाट आर दोज 7 बेस क्वांटिटीज़? दोज 7 बेस क्वांटिटीज़ आर योर लेंथ, मास, टाइम, temperature, amount of substance, electric current, light, intensity. So these are your 7 which are quantities which are your base quantities. तो ये 7 quantities आपने सिर्फ याद रखनी है. इसके अलावा जितनी भी आपकी क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं. अच्छा, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो दैट वाज अ क्विक रिवीजन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिराइव्ड क्वांटिटीज़. अच्छा, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बेस क्वांटिटीज एज वेल. दीज आर दोज क्वांटिटीज़ दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, जो कि किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं. दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. दोज आर योर बेस क्वांटिटीज़. वेयरएज जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, दीज आर दोज क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन बेसिक क्वांटिटीज़. ठीक है, सो those quantities that depends on base quantities are called derived quantities. ठीक है, so those quantities that depend upon base quantities are called your derived quantities. These quantities are obtained by multiplying or dividing two or more than two basic quantities. ठीक है, तो ड्राइव क्वांटिटीज बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई टू और मोर देन टू बेसिक क्वांटिटीज. whenever we multiply two or more than two basic quantities, so whatever quantity that we will get, that will be our derived quantities. For example, area. Now area is a derived quantity. Area is a derived quantity. How area is a derived quantity? Usually अगर आपको कहा जाए कि if you are asked to calculate the area of something, then what you will do? Let's suppose what is the area of a square? Area of a square is length multiplied by breadth. So length multiplied by breadth, that is basically your area. So you can easily see that length is your first base quantity, breadth is your second base quantities. So whenever I multiply these two quantities, I will get a third quantity. That quantity is called your area. So area is basically a derived quantity. तो area जो आपका होता है वो basically आपको जो वो derived quantities होती हैं. अच्छा, यूनिट क्या होता है एरिया का? यूनिट ऑफ एरिया जो आपका होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर. सो जो आपकी फर्स्ट लेंथ है उसका यूनिट मीटर है, तो मीटर.
जो आपकी सेकेंड ब्रेथ है दैट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर, सो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, सो दैट विल बिकम मीटर स्क्वायर. So this is basically the unit of area. So area is a derived quantity. Why area is derived quantity? Because it is obtained by multiplying two basic quantities, and those two basic quantities are length and breadth. Usually length और breadth आपकी दोनों length ही होती हैं, लेकिन since they are two different, they are behaving as two different quantities, so that is called your that is basically your derived quantity. Similarly, volume. Volume is also a derived quantity. So whenever you are calculating a volume, what you have to do, you have to multiply length with breadth, and then you have to multiply it with height as well. So आप length, breadth और height को आपस में multiply करते हैं, you get volume. Now length is your first basic quantity, breadth is your second basic quantity, and height is your third basic quantity. इस तरीके से you can easily see कि I have multiplied three basic quantities, and by multiplying these three basic quantities I get a quantity which is called your volume, and that volume is a derived quantity since it is being derived from the basic quantities. तो basic quantities आपकी जो quantities derive करते हैं आप, वो quantities आपकी होती हैं, those quantities are called your derived quantities. What is the unit of volume? As you can easily see from the formula, length is measured in meters, breadth is also measured in meters, height is also measured in meters. So जो इसका यूनिट बन जाएगा दैट विल बी मीटर क्यूब. सो लेंथ का जो यूनिट आपका होगा दैट यूनिट विल बी मीटर क्यूब. सो दिस मीन्स दैट लेंथ इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी. लेंथ जो आपकी है ये भी आपकी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. सिमिलरली ये तो आपके सेम क्वांटिटी थी जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा था. लेट्स सी अबाउट वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. Distance upon time, that is the formula of velocity. Distance is your first basic quantity, time is your second basic quantity. तो आप यहाँ पे दो, you have two quantities here used, two quantities used here. Those two quantities are distance and time. Both of them are basically your base quantity. दोनों की दोनों आप यहाँ वो base quantities हैं. Distance and length both are same. So if I divide these two quantities, so what do I get? By dividing these two quantities, by dividing distance with time, I get a third quantity, and that third quantity is called your velocity. So that velocity is basically a derived quantity which is obtained by dividing two basic quantities. तो इस तरीके से it's not necessary कि आप दो basic quantities को सिर्फ multiply करें. You can divide them as well. By dividing them as well, you can obtain a derived quantity. Or you can do another thing कि आप दो quantities multiply कर रहे हैं, तीसरी divide हो रही है. It doesn't matter. You can obtain derived quantities by multiplying or dividing or doing both with a number of basic quantities. आपकी जो quantities यहाँ पर use हो रही हैं वो सारी आपकी basic quantities होती हैं, और उन्हीं को multiply divide करके आप जो derived quantities हैं उनको आप obtain करते हैं. अच्छा, what could be the unit of velocity? Since distance is measured in meters, distance को measure करते हैं meters में, so distance की जगह पे you will simply put meter there, then it will be the divide sign. Time is measured in seconds, the unit of time is seconds, so you will put second here. So जो unit आपका आया velocity का, the unit of velocity is meter per second. So this is how we calculate, or in other words you can say we derive the derived quantity. तो derived quantities को derive करने के लिए हम ये काम करते हैं. तो इस तरीके से this is your derived quantities. These are just few of the derived quantities जो कि मैंने अभी आपको जब वो बताई हैं. आपका जो होम टास्क है जो कि बेसिकली आपने करना है, you have to make a list of maybe 20 derived quantities. ठीक है, आप सबने अपने जर्नल पे, फेड जर्नल पे, ये जो नोट्स में आपको दे रहा हूँ ये भी आपने कॉपी डाउन करनी है, और कॉपी डाउन करने के बाद यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 20 derived quantities along with their units and symbols.
ठीक है, यूनिट्स भी आपने उसके साथ मेंशन करनी है और आपने उसके साथ साथ जो है वो उनके सिंबल्स जो हैं यूनिट्स के वो भी आपने मेंशन करने हैं। तो दिस इज़ योर होम टास्क दैट यू हैव टू कंप्लीट, और इसको जो है वो आपने अपने जर्नल पे कॉपी डाउन करना है। अच्छा, ये जो आपके 20 ड्राइव क्वांटिटीज हैं, यू कैन ऑब्टेन दीज ड्राइव क्वांटिटीज़ फ्रॉम योर बुक। आप अपनी बुक जो है उससे अगर आप गो थ्रू करेंगे तो उस बुक में भी जो 7 क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं बेसिक, उसके अलावा आपको जितनी भी क्वांटिटीज़ आप पढ़ेंगे ऑल दोज क्वांटिटीज़ विल बी योर डिराइव क्वांटिटीज। आई विल जस्ट सिंपली गिव यू सम एग्जांपल, जैसे फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, वेट हो गया, ऑल दीज आर योर डिराइव क्वांटिटीज। इस तरीके से आपने 20 क्वांटिटीज़ जो है उनकी जो है आपने एक लिस्ट बनानी है अलॉन्ग विद द यूनिट्स एंड विद देयर सिंबल्स। दैट इज़ योर होम टास्क फॉर टुडे। Okay, if you have any question regarding drive quantities, you can ask me now, anyone. जी बेटा। Sir, are you going to post this on Google Classroom? Yes बेटा, I will be posting it on Google Classroom as well, and I have told you earlier as well कि जो भी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग all these lectures, और ये जो लेक्चर्स हैं इनको मैं अपलोड भी कर देता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू अगेन थ्रू these lectures, you can go through again. Okay, so these are basically your drive quantities. So ये आपकी जो है वो बेसिक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज prefixes. The next topic is prefixes. I think all of you must have heard about prefixes. इंग्लिश में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, इंग्लिश में आपने prefixes भी पढ़ा होगा और suffix भी पढ़ा होगा आपने। So basically prefixes क्या होते हैं? Prefixes are basically your alphabets, your special symbols that are used before a unit to represent that how big or how small that unit is. For example, you must have heard about kilogram. You must have heard about kilogram. This is basically a unit. So prefixes are basically used in units. In this kilogram, ये जो K आपका है, this K means kilo. Sorry, this K means kilo. So this kilo is basically your prefix. Kilo जो आपका है वो prefix है, और आपका ये जो ग्राम है, G means G आपका है, that is your gram, which is the unit of mass. So किलो जो आपका है दैट इज अ प्रीफिक्स, ग्राम जो आपका है दैट इज अ मास। अब ये जो किलो है विच इज योर प्रीफिक्स, इट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू, एंड व्हाट इज इट्स पर्टिकुलर वैल्यू? बेसिकली किलो इज इक्वल टू 1000, ठीक है, और यू कैन से किलो इज इक्वल टू 10 raised to the power 3. किलो इज इक्वल टू 1000 और किलो इज इक्वल टू 10 raised to the power 3. So whenever you are using किलो विद एनी यूनिट, आप किलो को अगर किसी भी यूनिट के साथ यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000. फॉर एग्जांपल किलोग्राम तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट और स्टडी अबाउट किलोमीटर. किलोमीटर आपने पढ़ा होगा किलोमीटर के बारे में. अब इस किलोमीटर में जो किलो है दैट इज अ प्रीफिक्स जिसकी वैल्यू आपकी है 1000, और जो मीटर आपका है दैट इज योर यूनिट विच इज द यूनिट ऑफ लेंथ. सो किलोग्राम आपको बता रहा होगा आपका जो मास है वो कितना ज़्यादा है, और जो किलोमीटर है दैट विल बी शोइंग यू दैट हाउ मच डिस्टेंस देयर इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या बिटवीन टू सिटीज़. तो जो डिस्टेंस होता है उसके लिए आप किलोमीटर यूज़ करते हैं. यू कैन यूज़ एनी अदर यूनिट, लेकिन मैं अभी आपको से बताना ही चाह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे जो प्रीफिक्स किलो है दैट कैन बी यूज्ड विद एनी यूनिट. फर्स्ट एग्जाम्पल में आई हैव यूज्ड किलो विद ग्राम. सेकेंड एग्जाम्पल में आई हैव यूज्ड किलो विद मीटर. You can also use kilo with watt as well. You must have heard about kilowatt. That is the unit जो कि आप normally जब बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं. You must have heard about that. So that is your kilowatt. So इसमें watt आपका यूनिट है, K आपका जो that is your prefix. Similarly you can also use kilo ampere. ठीक है. So that is also a unit. That how much 1000 and ampere is your unit. So this is how you can use prefixes. तो ये तो मैंने अभी आपको एक प्रीफिक्स बताया है.
यूजली जो प्रीफिक्स होती है, प्रीफिक्स होते हैं आपकी, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस. And what does prefix do? Prefix tells us that how big or how small a quantity is. Prefix जब भी आप यूज कर रहे हैं, अगर if it is more than 1, अगर prefix जो आप यूज कर रहे हैं उस prefix की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, so this means that the unit is greater than 1. यूनिट आपका जो है वो बड़ा यूनिट है. लेकिन अगर आपको जो prefix है उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, इट्स लेस देन 1, या इन अदर वर्ड यू कैन से जो 10 रेज़ टू द पावर आपने ये लिखा हुआ है, ये 10 रेज़ टू द पावर, अगर इफ दिस पावर इज इन नेगेटिव, तो आपको जो प्रीफिक्स है दैट प्रीफिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. ठीक है. सो किलो आपका एक प्रीफिक्स है. इसके अलावा यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड अबाउट अदर प्रीफिक्सेस इन योर डेली लाइफ एज वेल. फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मिली. मिली के बारे में आपने सुना होगा, मिलीमीटर, मिलीग्राम. आपने सेंटी के बारे में सुना होगा, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम. So this milli, this centi, all these are your prefixes. So what are prefixes? Prefixes are symbols or symbols or alphabets used before a unit to represent how big or small that unit is. ठीक है, how big or small that unit is. एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दे दी है. फॉर एग्जाम्पल किलो, मिली, नैनो, सेंटी. ठीक है, ऑल दीज आर योर प्रीफिक्सेस. ये सारे सारे आपको जो है वो प्रीफिक्सेस हैं which can be used with any unit, with unit of any base quantity or derived quantity. Okay, now I'll be making a list of prefixes. I think ये सिंपल्स ड्रॉ करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. Anyhow, I'll be sharing with you in the Google Classroom a list of prefixes along with their symbols and their value. So you have to remember those prefixes. तो ये I think यहाँ पे भी ये मेरे लिए symbols ड्रॉ करना जो डिफिकल्ट हो जाएगा वर्ड नोटपैड के अंदर. So I'll be sharing you a picture of all these prefixes. तो वो prefixes जो आपने वो भी ये नोट लिखने के बाद, जो मैंने अभी आपको नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लिखने के बाद आपने सारे सारे प्रीफिक्सेस जो है वो भी आपने अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो उनको कॉपी डाउन करना है आपने. ठीक है. सो दीज आर योर प्रीफिक्सेस. अच्छा, इसमें आई विल जस्ट टेल यू वन मोर थिंग. एक हमारे पास चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड योर साइंटिफिक नोटेशन. दिस साइंटिफिक नोटेशन यू मस्ट हैव आल्सो स्टडीड इन मैथ्स एज वेल. जितनी भी आप अभी तक फिजिक्स पढ़ते आए हैं, सारी फिजिक्स आप वही है जो कि आप पहले पढ़ के आ चुके हैं. साइंटिफिक नोटेशन आपने जब वो मैथ में पढ़ी होगी. साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली होती क्या है कि इस इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स. साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स विच आर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल. सो वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स को आप क्या करते हैं, 10 रेज़ टू द पावर में कन्वर्ट करके लिखते हैं. तो वो नंबर्स को आप जो 10 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर साइंटिफिक नोटेशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ नंबर, दिस इज अ नंबर दैट आई हैव. Now this is a very large number. ये आपका बहुत large number है. I can write the same number like this as well, that 1 into 10 raised to the power. How many zeros there are? There are 9 zeros, तो 10 raised to power 9. I can write it like this. तो ये जो मैंने नंबर लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे जो नंबर आपको नजर आ रहा है, दैट इज योर नॉर्मल फॉर्म. ये आपकी नॉर्मल फॉर्म कहलाती है. और जो नंबर आपका राइट साइड पे लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर करके, दैट नंबर इज कॉल्ड योर साइंटिफिक नोटेशन. दैट इज कॉल्ड योर साइंटिफिक फॉर्म. वो आपकी साइंटिफिक फॉर्म कहलाती है. अभी जो साइंटिफिक फॉर्म आपकी होती है, इसी साइंटिफिक फॉर्म को फिर हम जो है फर्दर कन्वर्ट करते हैं अपने प्रीफिक्सेस में.
कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 तो आपका वैसे के वैसे ही आएगा, लेकिन आपको जो 10 रेज टू द पावर लिखा हुआ है 9, दिस 10 रेज टू द पावर 9 इज इक्वल टू एक्सा। ये जो आपका ये एक्सा के बराबर होता है, यू कैन राइट इट एज एक्सा, 1 एक्सा। लेट्स सपोज कि अगर ये 10⁻9 मीटर्स हैं, देन यू कैन राइट इट सेम एज 1 एक्सामीटर। सो ये 1 एक्सामीटर है, दिस 1 एक्सामीटर में जो एक्सा है ये शो कर रहा है दैट इट्स वैल्यू इज 10⁻9। सो यू कैन राइट द सेम नंबर, दिस सेम नंबर like this, or you can write it like this using prefixes where e जो आपके that is your e जो आपके that is your hexa जो कि आपका प्रीफिक्स है, hexa that is your prefix, और इसकी जो आपकी वैल्यू है hexa की that value is 10 raised to the power 9. So इस तरीके से you can convert a normal form number into a scientific form, और फिर उस scientific form में नंबर में जो आपकी 10 raised to power आ रहा है, you just see कि आपकी ये 10 raised to power जो है वो किसके बराबर है, it is equal to hexa which is represented by e। तो आपने simply जो है वो इस 10 raised to power 9 को आपने रिप्लेस कर दिया विद अ सिंबल e, सो दिस बिकम 1 हेक्सामीटर। तो ये आपका इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें बाय डिफॉल्ट अगर आपको ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें डेसिमल पॉइंट जो आपके दैट इज राइट एट द एंड, डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पर है राइट एट द एंड ऑफ दिस नंबर, सिंस डेसिमल पॉइंट आपको ये मेंशन नहीं किया गया। सो डेसिमल पॉइंट आपको जब राइट एट द एंड है, इस डेसिमल पॉइंट को आप क्या करेंगे, यू विल मूव दिस डेसिमल पॉइंट फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। तो आपका जो डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव करेगा टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो जितने डिजिट को वो जंप करता हुआ जाएगा यू विल राइट 10 raised to the power 9 देयर। ठीक है, आपने उसकी पावर में उतना नंबर आपने लिखना है। अगर ये जो आपका पॉइंट है इसने 9 zeros जंप किए देन इट हैज लैंडेड हियर आफ्टर 1, तो 9 zeros जंप करके जब वो यहाँ पर आएगा, सो आप जो नंबर लिखेंगे दैट नंबर विल बी 10 raised to the power 9। तो 10 की जो है वो पावर 9 कर देंगे। लेकिन अगर सेम नंबर है, लेट्स सपोज यू हैव द सेम नंबर, the same number can also be written like this, 10 into 10 raised to power 8। Why 8 now? क्योंकि अभी मैंने क्या किया, now I have moved my decimal point from this location to this location। तो मैंने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से हटाकर यहाँ से मैंने हटाया और I have taken this decimal point here। अब जब डेसिमल पॉइंट को यहाँ लेकर आए तो it has jumped over 8 digits। ये आपके 8 डिजिट्स हैं, तो 8 डिजिट्स को इसने जंप किए। ये जो 10 आपका था, ये 10 तो आपका यहाँ पर आ गया, और ये इसने जो 8 डिजिट्स जंप किए थे, इन 8 डिजिट्स को आपने 10 raised to power 8 करके लिख दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 10 raised to power 8 जो है दैट इज़ नॉट अ प्रीफिक्स। पावर 8 जो होती है वो आपका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, तो आप इसको सिंपली ऐसे ही रहने देंगे, इसी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रहने देंगे। प्रीफिक्सेस जो मैं आपको शेयर करूँगा सिर्फ वही प्रीफिक्सेस होते हैं, उसके अलावा बेसिकली यूजुअली 3 के डिफरेंस आपके प्रीफिक्स होते हैं। यानी कि प्रीफिक्स आपका 6 होगा, 10 raised to power 6 होगा, 10 raised to power 6 के बाद 10 raised to power 9 होगा, 10 raised to power 9 के बाद 10 raised to power 12 होगा, 12 के बाद 15 होगा। तो इस तरीके से आपके प्रीफिक्स होते हैं, सो दे आर नॉट वेरी क्लोज टुगेदर। तो इस तरीके से जो है यू कैन डू एनी प्रीफिक्स। तो इसमें देखिए, अगर आपको जो डेसिमल पॉइंट है इट हैज़ मूव टूवर्ड राइट साइड को आपका डेसिमल पॉइंट अगर मूव करेगा तो जो पावर इसकी होगी दैट पावर विल बी पॉजिटिव। पावर जो थी 8 जो था मैंने लिखा दैट 8 विल बी पॉजिटिव। तो ये मेथड है नंबर नॉर्मल फॉर्म से किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अगर आपका नंबर बहुत छोटा है, लेट्स सपोज आपका नंबर है 0. लेट्स सपोज कि ये आपका नंबर ये है, ठीक है, दिस इज योर नंबर। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर, दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर। ये नंबर स्मॉल क्यों है? क्योंकि आपका ये नंबर है 0.000 समथिंग 28 इसका आपका नंबर है, तो दिस नंबर इज वेरी स्मॉल। तो व्हेनेवर यू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, सो यू हैव टू मूव दिस डेसिमल पॉइंट, ये आपको जो डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट को आपने यहाँ से हटाकर फर्स्ट
जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर है उसके बाद लेके जाना है। अब यहाँ पे जीरो डज नॉट हैव एनी वैल्यू, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपको जो फर्स्ट नंबर आपको जिसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है वो आपको ये 2 नज़र आ रहा है। सो यू विल मूव योर डेसिमल पॉइंट फ्रॉम हियर आफ्टर दिस 2, जो आप 2 के बाद मूव करें तो दिस विल बिकम 2.8। आपने जब डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर दिया आफ्टर 2, so this number will become 2.8. Then you will put the sign of multiplication, 10 raised to the power. Now how many digits this point has jumped from here to here? यहाँ से जिस जगह पे डेसिमल पॉइंट आपका अभी मौजूद है वहाँ से 2 के बाद आने में कितना टाइम जो है वो आपका ये ले रहा है, कितने मतलब कि डिजिट्स जंप किए हैं इस डेसिमल पॉइंट के 10 रेज़ टू पावर में आप वो नंबर लिखेंगे। तो लेट्स काउंट दोज नंबर डिजिट्स, 3, 6, 9 एंड 10। तो टोटल 10 डिजिट्स थे जिनको कि डेसिमल पॉइंट जंप करके यहाँ से 2 के बाद आया था। तो दिस विल बिकम 10 रेज़ टू द पावर 10। Now since the decimal point is jumping towards the right, डेसिमल पॉइंट आपका राइट की तरफ जंप कर रहे हैं तो उसकी जो पावर होगी दैट पावर विल बी नेगेटिव, इट्स पावर विल नॉट बी पॉजिटिव, इट्स पावर विल बी नेगेटिव। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसका जो आंसर होगा दैट आंसर विल बी 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power minus 10. So this is a way of converting a normal form number into a scientific notation. सो नॉर्मल फॉर्म नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने याद रखने डेसिमल पॉइंट हैज़ टू बी मूव्ड आफ्टर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। जो आपका पहला सिग्निफिकेंट नंबर है जिसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट को आपने वहाँ पर मूव करना है। आफ्टर मूविंग डेसिमल पॉइंट देयर यू विल काउंट हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर्स दैट डेसिमल पॉइंट हैज़ जम्प्ड। तो जितने भी डेसिमल पॉइंट को वो जंप करके आया होगा यू विल राइट 10 रेज़ टू द पावर में आपने वो नंबर लिखना है। अगर वो 10 डिजिट्स जंप करेगा तो 10 रेज़ टू पावर में यू विल राइट डाउन 10 देयर। अगर 8 डिजिट्स जंप करेगा यू विल राइट 10 रेज़ टू पावर 8। 9 डिजिट्स जंप करेगा यू विल राइट 10 रेज़ टू पावर 9। तो इस तरीके जितने डिजिट को जंप करके आएगा 10 की पावर के अंदर यू विल राइट दैट नंबर। थर्ड चीज़, अगर आपका डेसिमल पॉइंट जो है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, अगर आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसकी जो पावर आप होगी दैट पावर विल बी पॉजिटिव। पावर आपकी पॉजिटिव होगी दैट विल बी शोइंग के आपके जो वो नंबर आपका जो वो बड़ा नंबर है आपका। लेकिन अगर आपका डेसिमल पॉइंट है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, अगर डेसिमल पॉइंट आपका राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी जो पावर होगी दैट पावर विल बी नेगेटिव बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। तो वेरी स्मॉल नंबर को साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी जो पावर होती है उस पावर को आप नेगेटिव बनाते हैं। तो इस तरीके से यू कैन कन्वर्ट योर नंबर्स इजीली from normal form to scientific form. Vice versa, you can also convert from scientific form to normal form as well. So ये जितना भी आपका ये टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का, you must have studied this in mathematics as well. So you have to go there and you have to revise that topic again. So if you have got any question, you can ask me right now. सर मेरे पास क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन का, आप मुझे डेफिनेशन वापस से समझा दें। देखो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होती है, इफ वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर और इफ वी हैव अ वेरी स्मॉल नंबर, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिप्रेजेंट दोज नंबर, टू इवन टेल अ पर्सन अबाउट दोज नंबर। अभी जो मैंने यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ है व्हाट विल नॉर्मली ये नंबर तो आप इजीली बता सकते हो दैट इज योर यू कैन से कि 10 मिलियन आपका है, सॉरी 1000 मिलियन है। लेकिन अगर आपको इससे ही बड़ा नंबर है, अगर मैं 50 जीरो और लगा दूँ इसके साथ, तो दैट नंबर विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल यू। तो आप क्या बताएंगे उसको 10000000 ओके भाई जितने जीरो मुझे वो बता दो। सो दैट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिप्रेजेंट दोज नंबर एंड राइट एंड एक्सप्रेस दोज नंबर। तो यूजुअली ऐसे नंबर जो कि आपके बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कन्वर्ट दोज नंबर इनटू 10 रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर वट एवर दैट नंबर है। तो आप जो नंबर को 10 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड योर साइंटिफिक नोटेशन, वो हमारी साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बहुत ज़्यादा है, तो इस डिस्टेंस को आप क्या करते हैं, यू सिंपली डोंट टेल के इतने जीरो हैं, 50 जीरो हैं, 100 जीरो हैं,
what do? You simply convert that number into your scientific notation, और scientific notation में convert करने के बाद आप उस number को जो है वो easily जो है वो represent कर सकते हैं. तो scientific notation में basically आपकी way है, it's a way of writing very large number or very small number in term of 10 raised to the power something. ठीक है? Yes बेटा, जी बेटा नुमान. Sir, if we convert from a prefix, a scientific notation into a prefix, and it's a different number instead of 10 to the power 9, if it's 10 to the power 12, will we still say hexa or some other number? Yes, there will be prefixes. I've told you कि आपके जो prefixes होते हैं, those prefixes are after every 10 raised power number. 10 raised power 3 तक तो आपके पूरे होते हैं. 10 power 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये तो आपके होते हैं. लेकिन after 10 raised power 3 it will be 10 raised power 6. There won't be any 10 raised power 4 and 10 raised power 5. तो 10 raised power 4 और 10 raised power 5 आपका कोई prefix नहीं होता. तो 3 के बाद directly goes on to 10 raised power 6. 10 raised power 6 के बाद you don't have 7, you don't have 10 raised power 8, you have 10 raised power 9. So 6 के बाद 9 के बाद 12 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से आप जो है प्रीफिक्सेस यूज करेंगे. यूजुअली अगर आपका जो नंबर है, जैसे मेरा ये नंबर था, दिस नंबर. नाउ आई कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस. आई कैन राइट द सेम नंबर लाइक दिस एज वेल. सो ये जो मैंने नंबर, सेम नंबर है, उसको मैंने दो तरीकों से लिखा हुआ है. एक मैंने उसको जो है 10 raised power 8 में लिखा हुआ है, एक 10 raised power 9 में लिखा हुआ है. तो it is better to write this number in term of these prefixes. तो अगर आप इस नंबर को 10 raised power 9 की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद 10 raised power 9 को आप एक्सा की फॉर्म में लिखेंगे, तो दैट विल बी आई थिंक वेरी बेटर. यानी अगर लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इस नंबर को रीड करूं तो हाउ आई विल रीड इट एज 1 into 10 raised power 9 मीटर. You observe that it take a bit longer time for me to tell this number. लेकिन अगर मैं ये नंबर बताऊंगा 1 hexameter, hardly take any time to tell you that what this number is. और hexa is an understood prefix. hexa आपका एक understood prefix है जिसकी वैल्यू 10 power 9 है. So in terms of prefixes, when you are representing a number, तो you can represent that number very easily, you can represent that number very quickly. तो आपको बहुत जल्दी से वो नंबर आप बता भी सकते हैं. और जिस पर्सन को आप वो नंबर बता रहे हैं, he knows what hexa means, उसको पता है कि hexa का क्या मतलब है. So he would understand कि ये जो नंबर है it is 10 raised to power 9. ठीक है. So this is why we use these prefixes. Yes, but any more questions? Okay, I'll be uploading this video as well. और मैं इसकी लिंक जो है वो शेयर कर लूँगा गूगल क्लासरूम में. जो नोट्स आज के हैं ये भी आपको मैं शेयर कर लूँगा. कॉपी डाउन दोज नोट्स जो मैंने आपको टास्क दिया हुआ है. मैंने आपको जो टास्क दिया हुआ है, यू हैव टू डू दैट टास्क एज वेल. ठीक है, वो टास्क भी आपने करना है. सो जो आपने लिस्ट बनानी है वो आप बना लीजिएगा. और इंशाल्लाह सी यू टुमारो. आई थिंक मेरी भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई, आपकी भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है. सो ओवर एंड आउट.